Hello. Hi, Darshan. All good? All good. Great. Okay. So I was just talking about our Insta Live series, and here you are. So we'll formally introduce you first, and then we talk about the show. Okay. Absolutely. So yes, our today's guest is somebody who specializes into health coaching. Now, not a regular health coach. She specializes into weight loss for sure. She helps you in your, I would say, insulin resistance for sure. She also helps you in your gut related issues. She specializes into this. So please help me welcome Coach Deepika Rampal. आपका स्वागत है. Thank you so much, Darshan ji. Great. Okay. Well, Deepika, this is going to be a special show where we run this series for youth. The theme is transformation because we are helping them with a lot of confidence and a lot of clarity, and that ultimately leads to their transformation. तो उसी सीरीज के तहत आपको हमने आज इनवाइट किया है. For our viewers, I would say Deepika is a very busy coach, and this is not a paid promotion. It's absolutely voluntarily. She has agreed to join us on the show. So, अगर किसी को doubts है, तो मैं यहाँ पे clarify करना चाहूंगा कि this is a completely voluntary show. This is not a paid show. Thank you so much, everybody. Okay. Before we deep dive into your core subject, which is your specialty to health coaching, क्या आप हमारे viewers के लिए बता सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी? आपकी स्टोरी क्या है? So, Darshan, I basically started this 4 years back. I had been into corporate, so I understand कि professional life में कैसे हमारे challenges होते हैं और क्या होते हैं. So after that, I had my second baby 4 years back. That's when my journey started because after delivery मुझे बहुत सारे concerns थे, especially gut issues इतने सारे होने लगे. Body में energy नहीं थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. But I knew something was absolutely wrong, and that's when my mom also visited me. सो मम को देखा है बचपन से गट इश्यूज से फेस करते हुए, तो उनकी ट्रबल्स मैंने देखी थी. एंड नाउ आई थॉट दैट दिस हैज स्टार्टेड हैपनिंग टू मी आल्सो. एट द सेम टाइम आई विजिटेड अ हॉस्पिटल एज वेल व्हिच इज स्पेशलाइज्ड फॉर गट इश्यूज. एंड देन व्हेन आई सॉ दैट दिस थिंग्स कैन रियली गो वर्स, दैट्स व्हेन इट स्ट्राइक मी कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. अगर मैंने अब नहीं किया तो आई विल हैव द सेम फ्यूचर दैट आई वाज सीइंग इन फ्रंट ऑफ मी. So that's what triggered me, and that's when I started my personal journey. And as mothers ना बहुत बार होता है कि हम लोग इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को क्योंकि फैमिली देखना है, बच्चों को देखना है. बट आई वॉज अ वर्कोहॉलिक एज वेल. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अगर मैं इसको एज अ वर्क ले लूं अपना, I start training into this as well, then it will become my focus area. And that's how I started it with my personal journey. I started learning more. I started training myself into gut health because I understood that gut is the basic of our body. And if we understand the science of it, we can absolutely, reverse our conditions, whatever we are at. So that's where I started. बहुत अच्छे. तो आपकी लाइफ का वो मोमेंट कब था जब आपने तय किया नहीं मैं ये करूंगी? ये तभी हुआ कि जब मैंने देखा ना कि मेरे पर्सनल स्ट्रगल्स इतने हो रहे हैं और डॉक्टर्स के पास जाओ तो इतनी मेडिसिन मिलती है कि ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो. एंड आई एम समबडी हु कुड से कि मतलब बिल्कुल मेडिसिन खाना नहीं चाहती हूँ पहले से, बचपन से. तो मेरे लिए इट वाज अ बिगर ट्रबल कि एक तो प्रॉब्लम्स हो रही है प्लस हैव टू टेक मेडिकेशन. सो दैट वाज द पॉइंट कि नो, व्हेन आई केम थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गट हेल्थ, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड द रिजल्ट्स. तब मैंने सोच लिया कि ये तो मुझे चेंज करना ही है. आई डोंट वांट टू फेस द सेम प्रॉब्लम्स आई सॉ माय मॉम स्ट्रगलिंग विद. दैट्स व्हेन आई वाज प्योर एंड श्योर कि मुझे ये करना है. ओके. सो दीपिका, ये जो हमारा शो है इट्स बेसिकली ऑन इंस्टाग्राम, और आप तो जानते हैं इंस्टाग्राम इज बेसिकली 18 to 35 द कोर ऑडियंस ऑफ इंस्टाग्राम. अभी जब हम बात कर रहे हैं मम्मीज की, जब हम बात कर रहे हैं गट इश्यूज की, तो ऐसा कोई मिथ है दिमाग में सबके कि भाई ये फितूर होता है ना कि भाई यार ये तो बुढ़ापे में होता है, ये 50 के बाद होता है. तो उसके ऊपर कुछ आप क्लैरिटी देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा मिथ है, बट ये चेंज होता हुआ मिथ है. सो ऑफकोर्स एक टाइम था जब ये सारी प्रॉब्लम्स एक एज के बाद होती थी. बट अगर आप आज के टाइम पे देखो, ये कॉमन इश्यूज है क्योंकि ये सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है. ठीक है, ये कोई डिजीज नहीं है जो हमें हो गई है, ये हमारे लाइफस्टाइल से आया है. और आज के टाइम पे इफ आई सी, आई टॉक विद सो मेनी पीपल एवरी डे. मतलब ये बच्चों को भी हो रही है, गट इश्यूज अगर है तो बच्चों को भी हो रहे हैं, यंग एज में भी हो रहे हैं, मिड लाइक अपने 20s एंड 30s में भी हो रहा है, पोस्ट दैट भी हो रहा है. एंड आज के टाइम पे तो ऐसा हो रहा है कि डायबिटीज, फैटी लिवर, ये सारी चीजें भी जो हम सोचते थे कि ना एक एज के बाद, 40s के बाद, 50s के बाद कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, तब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है. आई एम सीइंग दिस इन पीपल इन देयर 20s एज वेल विद डायबिटीज, विद फैटी लिवर. सो दिस इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल कंडीशन जो आज के टाइम पे बहुत कॉमन है. ओके, फाइन. सो आप ये कह रहे हैं कि ये इट इज नॉट ओनली फॉर पीपल विद 40s 50s, ये आम इंसान के लिए है, ये किसी को भी हो बिल्कुल सकता है. 15 साल के बच्चे को बिल्कुल भी होता है, 25 साल के को भी होता है, और 35 को भी होता है.
हाँ जी, अगर आपने कुछ थोड़े से रिपोर्ट्स आए थे बीच में, अगर आपने देखा हो तो NAFD जिसको हम कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, आजकल बच्चों में आ रहा है। ओके। नहीं तो हम पहले कहते थे फैटी लिवर होता है जो बहुत ड्रिंक करते हैं। मिथ तो यही था कि जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करेक्ट। अल्कोहल पीते हैं उनका लिवर खराब होता है। बट आज के टाइम पे आप देखो तो इट्स लाइक वेरी कॉमन। ओके, ग्रेट। सो दीदी, ये तो बिगिनर था, ये स्टार्टर था। मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल आए हैं, तो बी रेडी विद दिस। और इंस्टाग्राम हैज फ्लडेड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगले 50 मिनट आपको हम लोग बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, तो अगर आपको पानी वानी एब्सोल्युटली। पीना है तो पी लीजिए, बिकॉज आई एम गुड इंस्टाग्राम दर्शन। हैज फ्लडेड। बिकॉज उनको पता चला कि दीपिका मैम आ रही है लाइन पे, तो बहुत सारे सवाल आए हमारे पास। आई एम थैंकफुल फॉर दैट एंड आई होप आई कैन हेल्प यू विद द आंसर्स एंड द ऑडियंस एज ग्रेट। वेल। ओके, टू बिगिन एंड टू गेट द क्लैरिटी, बिकॉज यू मेंशन इन योर पर्सनल स्टोरी कि आपके कुछ गट रिलेटेड इश्यूज थे, तो उस पे कुछ हम लोग बता सकते हैं कि क्या थे, क्या इश्यूज आपने फेस किए और उसे किस तरह से आपने ओवरकम किए। ठीक है। सो मेरे मेजर इश्यूज थे कि मुझे बहुत सीवियर ब्लोटिंग होती थी, बर्ब्स बहुत आते थे, एंड जो कॉमनली पीपल बहुत एम्बैरस होते हैं जिससे, फार्ट्स बहुत होते हैं, फटीग बहुत रहता था, जीरो एनर्जी, मतलब मैं कितना भी खा लूं, रेस्ट कर लूं, सो लूं, माई एनर्जी लेवल यूज टू बी जीरो। सो ये बहुत कॉमन इश्यूज है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, दीज आर वेरी कॉमन इश्यूज जो लोग डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। बट या तो लोगों ने उसको नॉर्मलाइज कर लिया है कि ये तो ऐसा ही है, या तो वो लोग उससे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मल्टीपल चीजें ऑनलाइन है, जो किसी से सुना है वो ट्राई कर रहे हैं, ट्राई एंड एरर मेथड यूज कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज देयर वेरी कॉमनली। ओके, वी विल कम टू दैट, हाउ डिड यू ओवरकम। बट इन बिटवीन आपके जो आपने बताया उसमें बहुत सारे सवाल है कि ये एक तो लोग समझ रहे थे, बिकॉज मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि हम कहते हैं ना, ये गट फीलिंग मुझे आ रही है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो ये बेसिकली गट होता क्या है। सो गट बेसिकली हमारे स्टमक में जो हम खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसको कैसे बॉडी प्रोसेस कर रही है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। सो दैट्स द सेंटर, लाइक आई ऑलवेज से दिस अगेन एंड अगेन, जो गट है हमारी बॉडी का एपिसेंटर होता है। वो सब चीज आपकी बैलेंस करता है, मतलब आपकी बॉडी में जितना भी कुछ हो रहा है, अगर मेंटल स्ट्रगल हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, फिजिकल हेल्थ में आपकी अगर प्रॉब्लम हो रही है, समवेयर द रूट कॉज इज इन योर गट ओनली। या तो वो अच्छे ओके। से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, या अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। सो देयर इज प्रोबेबली समथिंग इनटू योर गट हेल्थ दैट इज नॉट एट इट्स बेस्ट, क्योंकि उससे आपकी बॉडी के बाकी सारे बॉडी पार्ट्स चलते हैं, फंक्शन करते हैं। सो दैट इज व्हाई ओके। गट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपने ब्लोटिंग बताया, ये ब्लोटिंग क्या होता है। सो ब्लोटिंग होता है कि कुछ खाने के बाद या कुछ नहीं खाने के बाद भी आप मॉर्निंग में उठते हो, आपको बहुत स्टमक में भारीपन फील होता है, यू फील वेरी हैवी, एंड कई लोगों को बहुत हैवीनेस फील होने के बाद वॉमिटिश भी फील होता है, नोजिया फील होता है। बट ब्लोटिंग इज बेसिकली आपका स्टमक टाइट हो गया, यू फील वेरी हैवी ऑन योर स्टमक। ओके, एंड यू मेंशन अबाउट बर्पिंग ऑल्सो। तो कई बार मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया है कि सम डेज इवन आई गेट बर्ब्स, बट दीज आर नॉट यूजुअल, बिकॉज आपको सुबह उठ के भी बर्प आते हैं, शाम को भी होता है। तो इज इट अ पार्ट ऑफ द गट इश्यू। यस। ओके। अगर आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, एंड देन देयर इज एसिड रिफ्लक्स भी होता है, जैसे कई लोगों को खाना मुंह में आ जाता है, बर्प करते वक्त द फूड कम्स अप इन द थ्रोट, सो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एसिड रिफ्लक्स। तो ये बेसिकली आपके फूड के डाइजेशन से, आपकी गट लाइनिंग, आपका गट कितने अच्छे से आपका खाना प्रोसेस कर रहा है, इट कम्स विद ऑल ऑफ दैट। ओके, तो यू मेंशन अबाउट योर स्टोरी, हाउ डिड यू ओवरकम दैट। आपने क्या ट्राई किया, आपने क्या आइडेंटिफाई किया, एंड हाउ डिड यू ओवरकम द एंटायर थिंग व्हिच यू वर फेसिंग। सो जो मैंने आइडेंटिफाई किया था, देयर वर कपल ऑफ थिंग्स। वन, वी डोंट हैव अ बैलेंस्ड मील, सबसे पहली चीज। स्पेशली इंडिया में, नॉट ओनली मी, एशियंस हम जितने भी होते हैं, हम बहुत कार्ब रिच फूड खाते हैं। ओके। एक तो बैलेंस नहीं होता है, और हम बहुत कार्ब रिच फूड खाते हैं, प्लस हम लोगों का बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। बिकॉज आई हैड अ बेबी 6 months, आई वाज ऑन maternity लीव, आई हैड नथिंग टू डू, जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द होम एंड द बेबी। तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल था, देयर वाज नथिंग हैपनिंग इन द बॉडी। तो उस टाइम पे आपका जो एनर्जी लेवल्स है वो सब डिप होने लगते, बिकॉज हम उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाते। तो बैलेंस्ड मील नहीं खा रहे हैं, उसको अच्छे से हम बर्न नहीं कर पा रहे, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। तो आई स्टार्टेड बैलेंसिंग माई मील्स। उसके कॉम्बिनेशंस भी कई बार बहुत मैटर करते हैं। सिंपलर फूड्स, कुछ फूड्स होते हैं जो हमें रात को नहीं खाने चाहिए, जैसे हमें पता है चने छोले वी शुड अवॉइड एट नाइट, बट हम लोग कभी इतना ध्यान नहीं देते। इफ देयर इज लेफ्ट ओवर फ्रॉम द आफ्टरनून, हम खा लेते हैं, बट वो बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, एंड स्पेशली एट नाइट इफ इट डजंट गेट दैट डाइजेशन आपका डिफिकल्ट है, उसको लॉन्गर टाइम लग रहा है, तो उसको हीलिंग पीरियड नहीं मिल रहा है उस टाइम पे। दैट्स व्हाई इन द मॉर्निंग नाउ वी स्टार्ट फीलिंग ब्लोटिंग। थर्ड व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि जो फूड हम खा रहे हैं जब बैलेंस नहीं है, लेट्स से कि हम प्रोटीन खा रहे हैं,
पहले तो हम प्रोटीन खाते नहीं है, मोस्ट ऑफ अस, लेट्स एज मोस्ट कॉमनली हम अगर आप वेजिटेरियंस है या इवन नॉन वेजिटेरियंस है तो आप फिर थोड़ा बहुत खा रहे हैं, बट वेजिटेरियंस है तो हम प्रोटीन ना के बराबर खाते हैं। और उसके बाद हम उसके साथ उतना प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की हमारे गट को बहुत सारा फाइबर चाहिए ताकि वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाए, वो हम उतना खाते नहीं है। हम जनरली खाते हैं 2 रोटी, विच इज वेरी कॉमन इन एवरी हाउस होल्ड, 2 रोटी सब्जी और दाल। कई लोग दाल भी नहीं खाते बट 2 रोटी सब्जी दाल हमें लगता है दिस इज आवर फुल मील, बट वो बैलेंस नहीं है। हमारा रोटी ओके। कार्ब ज्यादा है, प्रोटीन कम है, और फाइबर तो डिपेंड्स कि कौन कितनी अच्छी सब्जी खा रहा है। कोई लोग बहुत थोड़ी से भी खा लेते हैं, कोई लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो जब वो बैलेंस नहीं होता है, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट सीइंग दीज प्रॉब्लम्स। तो वो बैलेंस करना शुरू किया। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है दर्शन जी, मतलब कई लोग होते हैं कि पानी नहीं पी रहे होते हैं, तो कई बार वो भी प्रॉब्लम होती है। कई बार आपकी स्लीप बेटर नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। ऑफकोर्स नाउ विथ किड्स वी नो, विथ न्यू बॉर्न्स हमें प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही होती है। विद एंड आई हैव 2 किड्स, तो वो तो एकदम ही डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पे। सो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स ओनली, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि हमारे लाइफस्टाइल से ही आ रहा है। तो सडनली आई सॉ दोस थिंग्स एंड देन आई स्टार्टेड करेक्टिंग थिंग्स वन बाय वन। कोई भी चीज ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकती है, खराब भी नहीं हुई थी ओवरनाइट एंड ठीक भी नहीं होगी ओवरनाइट। तो यू नीड टू मेक ओके। दो स्मॉल स्मॉल चेंजेस, दैट्स व्हाई इट्स अ जर्नी एंड आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी, आई बिलीव। अभी भी ओके। ऐसा कई बार होता है। ओके। सो इसमें से निकलने के लिए आपने, आई मीन व्हाट आर द थिंग्स यू डिड, बिकॉज ये इश्यूज आपने शेयर कर दिए, आपने चैलेंज भी शेयर कर दिए, आई थिंक दिस इज एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द पीपल। व्हाट आर द फ्यू थिंग्स, कुछ बदलाव लेके आने होंगे, तो वो क्या बदलाव होते हैं? सो फर्स्ट मैंने जैसे कहा, मैं अपना फूड बैलेंस करना मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया। आई डिड ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग सम सप्लीमेंट्स। हम्म। ठीक है, सो पहले इट्स अ वेरी बिग मिथ, आई क्विकली जस्ट रन थ्रू दिस। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक एंड इवन आई यूज्ड टू थिंक कि सप्लीमेंट्स नेचुरल नहीं होते, हमें हमेशा नेचुरल चीजें करनी चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर चाइल्डहुड कि जितना हम नेचुरल चीजें करेंगे वही बेटर होती है। बट लेट्स अंडरस्टैंड, आज के टाइम पे हमारी बॉडी को सारा न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है क्योंकि फूड में भी वो न्यूट्रिशन नहीं है उतना। हम्म। तो उसको बैलेंस करने के लिए आई ऑल्सो एडेड कपल ऑफ सप्लीमेंट्स दैट आई स्टार्टेड टेकिंग विद इट टू इवन हील माई गट एंड ऑल्सो टू हील माई ओवरऑल हेल्थ। सो दैट इज वन चेंज आई स्टार्टेड डूइंग। प्लस जैसे कि मैंने आपको बोला, वाटर इनटेक आई यूज्ड टू हार्डली टेक लाइक 1.5 of liters of water. I switched to having at least 2.5 to 3 liters of water that I needed. Sleep आपकी concentrate and थोड़ा बहुत body movement which was very necessary. So these are couple of things that you should focus on first, and then we can detail into go कि क्या actual problem है and how do we resolve that. ओके। सो डज दिस इश्यू क्रिएट फॉर द वेट लॉस आल्सो, ये जो आप बता रहे, डज दिस हैम्पर द वेट लॉस? Absolutely. सो वेट लॉस के साथ क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि वेट लॉस करना है तो हम कम खाएंगे या कैलोरी काउंटिंग में खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिगेस्ट ओके। स्ट्रगल रहती है क्योंकि सबका फोकस रहता है कि हमें वेट कम करना है। तो वो सोचते हैं वेट प्रॉब्लम है और उसके साथ अगर हमारी बॉडी में और कोई कंप्लेन्स है तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी क्योंकि हम वेट कम कर लेंगे। बट दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। अगर आपका रूट कॉज कुछ और है, जैसे अगर गट इशू है, तो वो रूट कॉज है जिसकी वजह से आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फैट स्टोरेज में भी जा रही है प्रॉबेबली, अगर आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस्ड है, तो वो वेट लॉस होगा ही नहीं। वेट बढ़ा क्यों है उसका भी रीजन होता है ना। तो आप अगर रूट कॉज को सॉल्व करोगे, वेट अपने आप नीचे आएगा। दैट्स व्हाट आई डू इन माय प्रोग्राम एज वेल कि आप अपना पहले गट हेल्थ इंप्रूव करो, जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करके उसे इंप्रूव करो। वेट लॉस तो एज अ बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। Okay, fine. Now, going back to the gut part, I think 60-70% of India faces this digestion issue, and somewhere this digestion is related to gut. तो ये हम लोग क्यों फेस कर रहे हैं? What is the issue overall? Is it our own lifestyle, हमारा खाना पीना? बहुत सारे इश्यूज है, मान लीजिए आज तो लोगों को स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रहता है, तो इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स? यस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि गट हेल्थ है तो मैंने जैसे कहा था, जब सब चीज से कनेक्टेड है तो अगर कोई भी पार्ट में डिस्टर्बेंस है तो वो इंटरनली आपके गट पे भी इम्पैक्ट करती है। सो आज के टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है, पहली बात तो हम फूड हॉग कर रहे हैं, या तो बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, या कुछ नहीं मिल रहा है तो हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, चिप्स मिल गए, बिस्किट मिल गए। कई बार हम हेल्दी फूड भी खा रहे हैं तो भी वो प्रोसेस्ड है किसी तरीके से। फिर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, ऑफिस में स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है, तो आपके कॉर्टिसोल, तो बेसिकली क्या है, हर पार्ट जो है आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। आपके हार्मोन्स कनेक्टेड है हर चीज से। तो अगर आपकी स्लीप खराब है तो आपका कॉर्टिसोल हाई हो जाएगा। अगर आपका न्यूट्रिशन कम है तो आपके गट हेल्थ पे, आपको अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम, आपकी गट लाइनिंग पे उसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। तो ये मल्टीपल चीजें हैं। पानी हम बहुत कम पीते हैं, कैफीन हम बहुत ज्यादा लेते हैं, या ग्रीन टी है या कॉफी है, ऑफिस में है कॉफी पे कॉफी, चाय पे चाय। सो ये सारी मल्टीपल चीजें हैं जिसकी वजह से हमें सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इट्स नॉट ओनली वन थिंग बट मल्टीपल थिंग्स। ओके।
एंड दिस ऑल विल बी रिलेटेड द सेम वे फॉर द वेट लॉस डन, बिकॉज कई सारे लोग आज जिस तरह से हमने बताया कि डाइजेशन इश्यू है, सिमिलरली आई थिंक इंडिया हैज बिकम द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सिंस आई एम फ्रॉम गुजरात, आई नो दैट गुजरात हैज बिकम द डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया. दूसरी बात है कि ओबेसिटी, एवरी सेकंड पर्सन विच वी सी इज ओबेस. तो ये हो क्या रहा है? सो ये हो ये रहा है ना कि एक तो स्ट्रेस है, तो ऑफकोर्स वो आपके हॉर्मोन्स पे इम्पैक्ट करता है. दूसरा है कि जब हम डायबिटीज की बात करते हैं या शुगर की बात करते हैं, जो कॉमनली हम लोग शुगर कहते हैं कि शुगर हो गई, तो जनरली लोग सोचते हैं कि हम जो चीनी खा रहे हैं या मिठाई खा रहे हैं तो वो शुगर है, उसको कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक होना चाहिए. बट देर इज अ बिगर प्रॉब्लम टू इट कि उसका रूट कॉज कुछ और है. हम जो कावरेज, जैसे मैंने कहा कि इंडियंस है तो हम कावरेज बहुत खाते हैं. हम कहते हैं सुबह लाइट नाश्ता करते हैं तो उपमा खा लेते हैं, पोहा खा लेते हैं, या सूजी का कुछ खा लेते हैं. ठीक है, मल्टीपल चीजें बनाते हैं हम, तो ये बेसिक हमारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं. बट ये सारी चीजें जिसको हम कहते हैं बेच कार्ब्स एज वेल, ये कार्ब्स है, सिंपल कार्ब्स है, जो बॉडी में हम खाते ही हमारा शुगर स्पाइक करता है. अगर अब शुगर स्पाइक करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन. अब ओके. जब ये रिपीटेडली हम सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया सिंपल का, लंच में हम 2 रोटी या चावल, एंड डिनर में भी 2 रोटी या चावल, ये स्टेबल फूड है हम इंडियंस का. तो एवरी टाइम जितनी बार हम ये खा रहे हैं उतनी बार, और बीच बीच में हम कहते हैं कि भाई नाश्ता भी करना चाहिए, चाय के साथ कुछ ले लिया, सुबह कुछ ले लिया, फ्रूट्स ले लिए बीच में, तो एवरी टाइम हम खा रहे हैं, बॉडी ग्लूकोज रिलीज कर रही है, इंसुलिन रिलीज कर रही है, तो नीचे ही नहीं आ पा रहा है. जो इंसुलिन जिसको नीचे आ जाना चाहिए वो नहीं आ रहा है. एंड कॉन्स्टेंटली जब हम ये करते रहते हैं तो बॉडी रेजिस्ट करने लगती है. अब फिर वो स्टोरेज मोड में आ जाती है. तो जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, जब बॉडी बहुत हाई इंसुलिन पे रहती है, तो आप जो भी खा रहे हैं बॉडी उसको एज फैट स्टोरेज मोड में जाने लगती है कि इसको स्टोर कर लो. तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे स्टोर करने लग जाती है. पहले लिवर पे करेगी, तो लिवर फुल हो जाएगा तो फैटी लिवर हो जाएगा. फिर हमारे गट पे जो बाकी बॉडी पार्ट्स है उस पर विसरल फैट क्रिएट करने लग जाएगा, तो हमारा बेली फैट आने लग जाएगा. सिमिलरली हमारा डायबिटीज आ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन इतना हाई है, नीचे नहीं आ पा रहा है, तो प्री डायबिटीज आएगा, फिर डायबिटीज आ जाएगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई होने लग जाएगा, उससे फिर हार्ट प्रॉब्लम्स भी होने लग जाएगी. तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, एंड इनका रूट कॉज कहीं ना कहीं सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंट है, जो हमारी लाइफस्टाइल से आ रहा है, बीमारी नहीं है कोई. ओके. सो आपने तो बहुत सारी चीजें भी एक साथ बता दी और लोग ये सुन के थोड़े डर जाएंगे. तो इससे बाहर निकल का रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे आउट ऑफ दिस? सो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए अगर हमें बाहर आना है तो उसका सिंपल सोल्यूशन एक होता है कि एक, आप अपने खाने में फाइबर इंक्लूड कर दो, मतलब बढ़ा दो. सब्जी के मामले में तो बहुत तरह के मैडम, फाइबर होते हैं. once again, since it's a complex issue, I would take your help as a coach कि आप इसे एक सिस्टमेटिक अप्रोच पे, जिस तरह से मान लीजिए आप अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं, आप उन्हें गाइड करते हैं, उसी तरह से हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे आप एक मे बी 5 स्टेप फॉर्मूला और मे बी 1 वीक फॉर्मूला वेयर दे कैन replicate this over a period of time, वो थोड़ा बता दीजिए. मे बी their lifestyle, their diet, their sleeping pattern, their thinking pattern, whatever, please. ठीक. सो फर्स्ट व्हाट यू डू इज अ टाइम बेस्ड ईटिंग मेथड. ठीक है, जिसको हम Okay. कहते हैं कि आपका जो फूड है मल्टीपल टाइम नहीं खाना है. मतलब ऐसा नहीं कि हम दिन भर ही खा रहे हैं, सुबह चाय बिस्किट भी नहीं खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. हमें 3 मील्स आपकी बॉडी के लिए इनफ है. 2 to 3 मील्स इज इनफ फॉर योर बॉडी. आप Okay. उसको प्लान करके चलिए कि उसके बीच में, 2 मील्स के बीच में आपका कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए. Okay. और अब गैप होगा वो क्यों होगा? अगर आप अच्छे से खाना खाएंगे, अगर आप हेल्दी एनरिच्ड न्यूट्रिशियस खाएंगे तो आपको इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी, विच मीन्स Okay. आपके खाने में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए और फाइबर ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो आपने Okay. टाइम बेस्ड ईटिंग किया. अब खाने में क्या खाना है? आपको प्रोटीन ज्यादा खाना है और फाइबर ज्यादा खाना है. कार्ब्स को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करिए. तीसरा पार्ट आप करेंगे, आपका वाटर इनटेक अच्छा रखिए. Okay. एंड आफ्टर ऑल योर मील्स ट्राई एटलीस्ट अ 10-15 मिनट्स वॉक. इतना Okay. अगर आप करोगे यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग. ऑफ कोर्स थोड़ा सा कई बार हमें ओवरवेलम भी करता है. कोई भी चीज आप नया स्टार्ट करेंगे तो बॉडी रेजिस्ट करेगी, Okay. बट अगर आपने उसको कर लिया, कंट्रोल कर लिया, देन इट गेट्स इजियर. Okay. फाइन. आपने प्रोटीन मेंशन किया, तो क्विकली बता दीजिए फॉर वेज क्या होना चाहिए, फॉर नॉन वेज क्या होना चाहिए? ओके, सो फॉर वेज कर्ड है, पनीर है, टोफू है, योर लेंटिल्स एंड दाल्स है, एंड एडमामे है. यहाँ पे इंडिया में इतना सब खाते नहीं है, बट एडमामे है. सो बेसिकली आपके लेंटिल्स में आपकी सारी दालें, चने, छोले, राजमा, लोबिया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड फॉर वेजिटेरियंस. Okay. एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस ऑफ कोर्स चिकन है, मीट्स हैं आपके जितने हैं, फिश है. इट्स जस्ट दैट रेड मीट नहीं, फ्राइड मीट नहीं कोई भी. आप उसको सौते या ग्रिल्ड ले लीजिए. सो वो भी बैलेंस करना है, नहीं तो रेड मीट खा लिया या फ्राइड खा लिया तो इट डजंट हेल्प.
ओके, डू यू थिंक somebody can take additional supplements for protein because अगर उनको suffice नहीं हो रहा है तो? इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। अगर किसी का गट लाइनिंग वीक है, गट हेल्थ पुअर है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो देन आई यूजुअली डोंट रिकमेंड प्रोटीन शेक्स अंटिल यू आर डूइंग वेरी एक्सटेंसिव वर्कआउट और ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग्स। क्योंकि अभी ओके, तो हमारे सबसे, आई बिलीव कि सप्लीमेंट्स आपको आपका फूड रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हैव योर फूड, जितना उसमें खा सकते हो। लेट्स से अगर आपका 100 ग्राम्स का टारगेट है फॉर प्रोटीन, अगर आप 60-70 अपने खाने से खा ले रहे हैं और फिर 20-30 आपको एज अ सपोर्ट चाहिए, तो देन यू टेक अ प्रोटीन एंड इफ यू आर एबल टू डाइजेस्ट दैट एज वेल। आपका गट हेल्थ ओके, भी इसलिए डिपेंड करता है। ओके। यू सेकंड पॉइंट यू आल्सो मेंशन विद द टाइमिंग ऑफ द फूड। सो मान लीजिए आपने बताया 3 meals a day, what should be the window in terms of eating pattern, तो वो आपको हेल्प करेगा। सो जनरली फर्स्ट हम देखते हैं कि रात से मॉर्निंग तक का जो गैप होता है, दैट ओके, शुड बी anywhere between 12 to 14 hours because that's ओके, when your body starts healing और वो फैट स्टोरेज पे भी टैप कर पाती है। ओके, उसके बाद आप अपना फर्स्ट मील लीजिए, विच इज योर ब्रेकफास्ट। 4 hours or 5 hours later is your lunch and again 4 hours 5 hours later is your dinner। तो इट कुड डिपेंड कि आप 9 बजे खा रहे हैं, हो सकता है मैं 10 बजे खा रही हूँ। तो ओके, आई थिंक ये 4-4-12 मेथड इज इजियर टू डू देन। ओके, ग्रेट। एंड इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव, लेट्स से हम कहते हैं कि भी हमारा लंच हैवी होता है और उसके बाद डिनर बहुत हैवी होता है, तो क्या इसे कुछ रिवर्स करना है, चेंज करना है, ऐसा कुछ होता है? सो डिनर शुड बी लाइटर ऑफ कोर्स, बट ब्रेकफास्ट एंड लंच आप फुल न्यूट्रिशियस फूड खाइए, हैवी एंड लाइट नहीं। आपके फूड में सब कुछ होना चाहिए, प्रोटीन है, कार्ब्स है, फाइबर है, हेल्दी फैट्स है। अगर वो बैलेंस्ड है तो देन इट्स परफेक्टली ओके। ओके, ग्रेट। नाउ यू ऑल्सो मेंशन अबाउट दैट पीपल हैव दैट हैबिट ऑफ हैविंग टी कॉफी, ग्रीन टी पीना है, कॉफी पीना है, ब्लैक कॉफी पीना है, तो ये बंद करना है या उसका कुछ मैनेजमेंट करना है, So कुछ टाइम tea, मैनेजमेंट so करना tea is usually which is very common. I'll talk about that first. कि लोग उठते ही सुबह सबसे पहले या तो बेड टी या अपना डे स्टार्ट करते हैं टी से। ऑफ कोर्स वो नहीं करना चाहिए बिकॉज वो आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस करता है, बॉडी में एसिडिक भी करता है। तो अपना टी जो है आप अपनी मील्स के साथ ले सकते हो, या तो विद ब्रेकफास्ट ले लीजिए, लंच के है। बाद ले लो या लंच के साथ ले लो, दैट इज बेटर। अगर हम्म। कोई ग्रीन टी पी रहा है, ग्रीन टी इज फाइन, लाइक आप अपने लंच एंड डिनर या उसके बीच में अगर आप लेते हो वो आप ले सकते हो। एंड कॉफी, ब्लैक कॉफी इज अगेन सेम एज अगर ग्रीन टी ले रहे हो आप मिड मील्स भी ले सकते हो, बट अगर आप मिल्क कॉफी ले रहे हैं तो देन अगेन विथ योर फूड ओनली, एम्प्टी स्टमक में। ओके, नाउ हियर कम्स द पार्ट इन टर्म्स ऑफ वेट मैनेजमेंट, बिकॉज जहां पे ये चीजें हो गई, आई थिंक वी मिस्ड ऑन द वाटर। कितना पानी पीना चाहिए? 3 लीटर्स, 2.5 to 3 लीटर्स। अगर शुड बी वेट लॉस मैनेज। करना है, अगर वेट लॉस करना है तो 3 लीटर्स, ओके, मिनिमम थ्री लिमिट लीटर्स minimum is सॉरी, 3 liters. It will help you in terms of hydration. यस। Okay, great. Now, when we discuss about all this, you also mentioned the time management, the food management. Do we look at the sleep management? यस, 8 hours मिनिमम ऑफ स्लीप। ओके, मान लीजिए कोई हसल कर रहा है, कोई बहुत काम कर रहा है, 12 बजे सोता है, 6 बजे उठ जाता है, या 1 बजे सोता है, 7 बजे उठ जाता है, इज दैट ओके? So it's, see, this is a part of lifestyle, so I will not say it is not okay because आपका work है तो आप करोगे, but then I think थोड़ा सा in the morning maybe do some breathing exercise, like calm your body as well. It's like working with your body, आपकी body को क्या support कर रहा है, because of course there are days with me as well कि ना मैं रात को अगर लेट तक काम कर रही हूँ, तो morning में अगर आपका time and work allow करता है, then maybe take a nap in the afternoon if you feel like very tired, recover with that, भले 15-20 minutes का nap also sometimes really work। नहीं तो morning में like make some time for yourself to relax your body, bring down your cortisol, because morning time में हमारे cortisols बहुत high होते हैं। ओके, So just calm your body down and then get to into your day. It could be a ओके, 15-minute stroll, meditation, breathing exercise, anything that works for you. okay, great. Now, since we are talking about this weight loss journey and everything, I think women face a lot of issues in terms of their overall hormone imbalance, and I think you specialize into that. उसमें कुछ बताइए, because ये एक major challenge हो चुका है, right from early age of 25 to of course of 45. This 20-year period is where major challenges are there. Women's, because women के ना multiple cycles होते हैं, very in like in our young age or maybe in our 20s 30s, people face with a lot of PCOD and PCOS these days. Thyroid has started coming in, later pre menopause हो रहा है, post menopause हो रहा है, menopause हो रहा है, तो hormones हमारे any which ways बहुत up and down होते हैं, but we can with basic छोटी छोटी चीजों से we can help them balance it as well, because again
सॉरी अगेन जो हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, ये भी हमारी लाइफस्टाइल से ही आ रहा है कि हम कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं। स्ट्रेस इतना ज्यादा है, कई बार इवन फॉर वुमेन्स दे गेट सो मच स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द हाउस होल्ड थिंग्स, द करियर हैपनिंग, किड्स हैपनिंग टुगेदर, एंड वी फील ओवरवेल्म्ड ऑल द टाइम, एंड दैट इज द रीजन। बट ये सारी चीजें जैसे कि मैंने कहा, ये बैलेंस हो सकती है आपके न्यूट्रिशन से और आपकी लाइफस्टाइल से। तो having again for women also, we are not eating the kind of protein our body needs to balance that hormone. So वही changes है जो मैं आपको लगेगा मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, बट दैट इज द कोर साइंस ऑफ आवर बॉडी। आप गट इश्यूज की बात कीजिए, बट हार्मोनल हेल्थ की बात कीजिए, या ब्लड शुगर रेगुलेशन की बात कीजिए जो हमारे मेटाबॉलिज्म पे हेल्प करता है, इट्स ऑल बिकॉज आप किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल है। सो आप यू टेक प्रॉपर स्लीप, यू हाइड्रेट योर सेल्फ, यू ईट न्यूट्रिशियस फूड। तो खाना भी खाने के लिए वी हैव बैलेंस प्लेट ना। कई बार होता है कि हमें स्वीट भी खानी होती है। इफ वी स्टार्ट योर मील विद स्वीट, देन बॉडी ऑफ कोर्स आपका शुगर इमीडिएटली ग्लूकोज लेवल हाई करती है। बट इफ यू ईट फाइबर फर्स्ट, यू ईट प्रोटीन एंड यू हैव योर डेजर्ट एट द एंड, इट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। ओके, ओके। सिंस वी टॉक अबाउट विमेन एंड ये इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं हमारा जो ट्रेंड है, especially when we set poll about you, a lot of women had these questions coming in. I want to emphasize here because we want to specialize on this here for women. So there are a lot of sugar spike issues coming for women, and then they get into that cholesterol thing, they get into the insulin resistance, and then of course leading to the sugar issues. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका कुछ क्लियर कट गाइडलाइन बताइए। बिकॉज पीपल आर फेसिंग इश्यूज इन टर्म्स ऑफ शुगर क्रेविंग, मुझे कुछ खाना है। देर आर क्वेश्चंस जो रिसीव कि भी मुझे रात को 10:30-11 बजे कुछ खाना है, कुछ खाना है। इवन आफ्टर द नाइस डिनर दे हैव दैट आफ्टर 1 hour विंडो, दे फील के मुझे कुछ खाना है, कुछ पीना है। सो क्रेविंग्स के लिए सबसे पहली चीज, क्रेविंग क्यों होती है? जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसे क्रेविंग होती है। ठीक है, सो लेट्स से द बॉडी इज आस्किंग फॉर, जस्ट अ वेरी सिली एग्जांपल मे बी, बट जस्ट केम इनटू माय माइंड। सो लेट्स से योर बॉडी इज आस्किंग फॉर यू टू गिव हिम एप्पल्स। ठीक है, बॉडी एप्पल्स मांग रही है, आप उसको ऑरेंजेस दे रहे हो, तो एक बार के लिए तो उसका पेट भर गया, बट उसका मन नहीं भरा, ही कीप आस्किंग यू फॉर एप्पल्स। तो वो आपको इसलिए क्रेविंग्स जो है कॉन्स्टेंट मिलेगा। तो एक तो हो गया न्यूट्रिशन, हो गया आपका जो क्रेविंग्स है। अगेन जो आपने मुझे शुगर क्रेविंग्स है या जो डायबिटीज शुगर की प्रॉब्लम्स आपने मुझे पूछी, जो विमेन्स में भी हो रही है आजकल बहुत कॉमनली, अगेन सी एवरीथिंग गोज बैक टू योर ब्लड शुगर रेगुलेशन विच इज हैपनिंग ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे, मेन विमेन, वी आर ऑल इंसुलिन रेजिस्टेंट बिकॉज हम यही खाने का पैटर्न है जो हम सालों से करे जा रहे हैं। एंड ये प्रॉब्लम इतनी डीप रूटेड है ना कि मतलब आपकी बॉडी जब 5 से 10 साल तक इंसुलिन रेजिस्टेंट रहती है, उसके बाद आप प्री डायबिटीज में जाते हैं। तो द प्रॉब्लम इज वेरी लॉन्ग, वी जस्ट नीड टू टेक एक्शन। तो अगेन उसके लिए भी सेम चीज ही है दर्शन जी, कि आप अपना खाना बैलेंस करना शुरू कीजिए। हैव मोर फाइबर। हम लोग नहीं खाते हैं फाइबर, हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है 30 ग्राम्स, हम हार्डली खाते हैं। तो आप या तो फाइबर अपने खाने में इंक्रीज कर दीजिए, नहीं तो आई लाइक वर्किंग विथ वन ऑफ द सिस्टम जिसमें हम फाइबर लेते हैं एज अ सपोर्ट सिस्टम, कि आप अपने खाने में खाइए। अगर उसमें नहीं खा पा रहे हैं, देन एड अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ अ गुड फाइबर विच इज हैज नो शुगर एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। दैट विल हेल्प यू। योर टाइम बेस्ड ईटिंग आपका इंसुलिन को नीचे आने का मौका दो। जब आपका पेट भरा हुआ होगा, आप अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खा रहे होगे, आप खा के देख लीजिए, एक दिन खा के देख लीजिए, पुट लाइक गुड प्रोटीन, पुट गुड वेजिटेबल्स इन योर फूड and maybe no carbs, like no roti rice, या limited, बहुत छोटा पोर्शन लीजिए। you see how you feel the next day or even the meal after, you will start seeing कि आपके एनर्जीज ऊपर जा रहे हैं, आपको भूख नहीं लग रही, you feel more full। but right now we are not eating, neither we are eating protein, neither we are eating that kind of fiber जो हमारी बॉडी को satisfaction देके उसने खा लिया है। हम carbs खाते हैं, वो शुगर स्पाइक कर देता है, इंसुलिन स्पाइक कर देता है, and we start, it's like a loop cycle जो ये चलता ही रहता है। We have to break। अगर मैं डिनर स्किप करता हूँ, डज इट हेल्प? सो डिनर स्किप नहीं करना चाहिए। सी माई आइडिया इज नॉट टू टेल यू कि आप कम खाना खाओ, आप सही खाना खाओ। बिकॉज कई बार होगा, स्पेशली इन विमेन, बिकॉज यू वर टॉकिंग अबाउट स्किपिंग अ मील एक्चुअली सिग्नल्स योर बॉडी अगेन टू स्टोर, क्योंकि उसे लगेगा कि उसे खाना नहीं मिलने वाला है, तो अभी जो मिल रहा है उसको स्टोर कर लेता हूँ ताकि बाद में यूज कर सकूं। प्लस इट ऑल्सो इम्बैलेंसेस योर हार्मोन। ओके, सो आप कह रहे हैं कि पोर्शन कंट्रोल करके थोड़ा सा कम खाना है, शाम को अगर खाना है तो थोड़ा कम खा लीजिए, पर खा लीजिए। सही खाना है, सही खाना है, मोर ऑफ प्रोटीन, मोर ऑफ फाइबर। ओके, फाइन। डज दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प? यस,
if used correctly, intermittent fasting is great, especially for people dealing with metabolic conditions, sugar, diabetes, PCOD, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ये जितने भी कंडीशंस हैं, इसके साथ अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अगेन व्हाट, जो हम टाइम बेस्ड ईटिंग की मेथड की बात कर रहे हैं. सो बट कई बार लोग ना उसे करेक्टली नहीं करते हैं, सीधा जाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए, 16-8 मेथड करने के लिए जाते हैं, विच इज 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग. अभी हम हार्डली 12 आवर्स भी नहीं कर रहे हैं, रात को 9-10 बजे खाना खाते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट भी हमारा, क्योंकि ऑफिस है 9 बजे होता है, तो 12 आवर्स की भी फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, सीधा 16 आवर्स करने जाते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं. देन दे डोंट गेट द राइट मोटिवेशन, क्योंकि बॉडी भी फिर सपोर्ट बोलते हैं कि ये नहीं चलता है. फिर कहते हैं ये नहीं चलता है. और दूसरी गलती होती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और फिर जब खा रहे हैं तो फिर कुछ भी खा रहे हैं, उन्हें लगता है 8 आवर्स का विंडो है तो कुछ भी खा लो, कितना भी खा लो. हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए. तो यू डू इट इन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, कि अगर आप 12 आवर्स कर रहे हो तो 14 आवर्स ट्राई करो, 14 आवर्स कर रहे हो तो 16 आवर्स ट्राई करो. वी नीड टू फेज इन, एंड देन अगेन न्यूट्रिशन हैज टू बी देयर. मतलब इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट कि आप खाना मत खाओ या कुछ भी खाओ और इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, दैट विल नॉट वर्क. बट इफ यूज्ड करेक्टली, इट्स एन एक्सेलेंट टूल टू ब्रिंग डाउन योर इंसुलिन रेजिस्टेंट एज वेल एंड सपोर्ट योर बॉडी विद इट. Okay. Will this intermittent fasting help for weight loss? यस, ऑफ कोर्स. देखो, बात वही है ना दर्शन जी, कि अगर आप अपनी बॉडी का अंदर से सिस्टम करेक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट से सेंसिटिव बन जाएगी तो फैट स्टोर करने की जगह फैट बर्न करना स्टार्ट कर देगी. जब फैट बर्न करेगी तो वेट ऑटोमेटिकली आपका नीचे आने लग जाएगा. ओके. आपकी कोचिंग करियर में आपने ये 4 साल में ये देखा होगा कि कुछ कुछ हेल्थ हैबिट्स है जो आपको बहुत डैमेज करती है. तो कैन यू जस्ट टेल अस 2-3 हैबिट्स जो तो हमें नहीं करनी चाहिए? जो आपको नहीं करनी चाहिए, ग्रीन टी हेल्दी है इसका मतलब नहीं है दिन में हम 5 ग्रीन टी पी लेंगे या ब्लैक कॉफी पी लेंगे. इट हैज कैफीन, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी. सो फिर हम पूरे दिन स्नैकिंग करते रहते हैं, हेल्दी स्नैक्स बोल के आजकल कुछ भी आ रहा है जो बेक्ड है, मखाना है, हमें लगता है तो हम कभी भी है उसे खा रहे हैं, अनलिमिटेड खा रहे हैं. स्लीप हमारी प्रॉपर नहीं है. तो हेल्दी हैबिट्स में मतलब ये मेन चीजें जो मुझे लगता है कि ओवर वर्कआउट कर रहे हैं. सो आज बहुत टाइम होता है कि ना वेट लॉस करना है तो 2 घंटे जिमिंग कर रहे हैं, बॉडी के हॉर्मोन्स इम्बैलेंस्ड है, कॉर्टिसोल हाई है और आप जिमिंग कर रहे हो, वो और हाई करेगा आपकी बॉडी को अगर वो सपोर्टिव नहीं है उस टाइम पे. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी के स्टेट में है, कितना आपको उसको रिक्वायरमेंट है क्या देने के लिए. सो बिकॉज हम वेट लॉस की बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो वेट लॉस मैक्सिमम लोग सोचते हैं जिमिंग में होता है, बट लेट मी टेल एवरीबडी टुडे, वेट लॉस इज 80% अबाउट व्हाट न्यूट्रिशन यू आर गिविंग टू योर बॉडी एंड ओनली 20% what workout you're doing. So people are focusing Wonderful. on the 20% and the 80% is completely avoided. Wonderful, wonderful. I think I got a question here. Somebody who is a female has written. She is 25. She faces 2 issues. One is PCOD and she's pre-diabetic. She's asking what lifestyle changes should I make and suggest me few couple of steps here. How old is she? I'm sorry, I forgot. 25. 20, 25. 25. So Yeah. 25 में she has PCOD and she has pre-diabetes. Of course, has to be her lifestyle. Something she needs to change there. There's something probably she's overworked, overstressed. There's something that she's not doing right. या बहुत junk food है जो young age में आजकल सब खा रहे हैं. प्रोसेस फूड है, जंक फूड है. सो एक बहुत बड़ा इससे मुझे याद आ रहा है कि लोग आजकल प्रोटीन बार खाते हैं, saying that it's a healthy thing, but it's not. So sometimes ये छोटी छोटी mistakes है जो हो रही है. So for her, what I would suggest is focus on having a simple food maybe, जो आपका है प्रोटीन रिच हो, फाइबर रिच हो. Of course, food has to come in, जो आपके बैलेंस करेगा. थोड़ा सा वर्कआउट, मूवमेंट, maybe a 30-minute walk or a 15-minute walk post all your meals, hydration and sleep. जो नेटफ्लिक्स एंड बिंज है, वॉचिंग है हमारी, उसको आई एम श्योर दिस इज देयर, तो आपकी स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फोकस ऑन दिस एरियाज फर्स्ट एंड देन वी कैन मेक एनी अदर चेंजेस व्हाट इज रिक्वायर्ड. बिकॉज आई हैव टू, लाइक इफ आई हैव टू वर्क विद हर, लाइक आई हैव टू गेट इनटू द डिटेल. आई गो वेरी डिटेल इनटू कि क्या रूट कॉज है. देयर इज ऑलवेज अ रूट कॉज जो हम गलत कर रहे होते हैं, जिसको करेक्ट करने की जरूरत होती है. बट ये बेसिक है, हाइड्रेशन, मूवमेंट, प्रॉपर फूड. Okay. Somebody has lost 12 kgs in last 4 months, and then they are worried for the relapse. What are the precautions they will take? So firstly, it depends आपने weight loss कैसे किया है. So I'm assuming, let's say you have done a diet or something. So for diet, what you do is you maintain. So diet नहीं होता है, basically एक structured meal अगर आप करते हो तो it has to be a part of your lifestyle. So most of thing first गलती हम ये करते हैं कि हमें fast weight loss करना होता है, हम एक diet लेते हैं which is very calorie deficit and something, and then we lose the She has weight. mentioned कि उन्होंने दिन में सिर्फ 2 शेक्स पिए हैं, सुबह शाम,
एंड उस तरह से कुछ उन्होंने वजन कम किया है. शी हैज नॉट मेंशन अदर डिटेल्स बट शी हैज लॉस्ट The 12 weight is kgs in going last to 4 come months. back for her. I'm so sorry to break this, but the weight is going to come back. Why? Because she has cut down on her food and she was dependent only on smoothies और shakes. And if I'm not wrong, आप अपनी पूरी जिंदगी ये दो shakes पे नहीं बिताने वाले हो. तो the moment you bring in the food back, the weight will start coming back. सो ऑलवेज अगर वेट लॉस करना है डू इट विद अ सस्टेनेबल मेथड जिसको आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बना सकते हो विच वी विल कंटिन्यू एंड फॉर द पीपल जिन्होंने वेट लॉस सही तरीके से किया है बट आर ऑल्सो वरिड बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल स्टार्ट इंक्लूडिंग दोज चेंजेस इन योर लाइफ एज अ स्टाइल मतलब कि वो 6 दिन या 2 महीने के लिए ऑप्शन नहीं था वो आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी डेज वे यू गोइंग टू गो आउट यू नॉट गोइंग टू फॉलो दैट तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस के लिए बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो लाइक वी से इट्स अ 80-20 मेथड दैट वी यूज एज वेल फॉर आर मेंटेनेंस विच इज कि 80% आप अपना सही तरीका फूड का फॉलो करो 20% इज वेर यू कैन मेक दोस चेंजेस कि आज बाहर गए आज कुछ खाने का मन कर गया आज शादी में गए थे आज ओवर ईटिंग हो गई दैट्स ओके बट उसको नेक्स्ट डे या प्रीवियस डे अगर मुझे पता है कि रात को मुझे शादी में जाना है तो देन आई शुड नो कि मुझे सुबह और दोपहर का खाना अच्छा खाना है सो दैट वो शाम को बैलेंस हो जाएगा या अगर नहीं पता था शाम को चले गए तो नेक्स्ट डे उसको बैलेंस कर लो सो 80-20 इज द रेशियो एंड मेथड दैट यू शुड फॉलो. मैडम आपने तो यहाँ पे परमिशन दी थी सबको रूल्स ब्रेक करने की. थोड़ा फन एंगल है यहाँ पे क्योंकि दिसंबर में तो बहुत शादियां हैं. एटलीस्ट 2 वीक्स तक बहुत शादियां हैं तो लोग बोलेंगे वो 20% में आ रही है उसके बाद में देख लूंगा तो चलेगा. नहीं मैंने इसीलिए कहा 80% पे फोकस करो 20% विल बैलेंस इट आउट इटसेल्फ. वन फूड हैबिट विच आई थिंक एज अ बिग मिथ कि भी लोग सोचते हैं कि ये मेरी कट के लिए अच्छा है पर एक्चुअली नहीं है. जो हमारे गट के लिए अच्छा है पर अच्छी नहीं है. आपके आपके एक्सपीरियंस से बताइए बिकॉज लोग सोचते नहीं नहीं ये मेरे लिए बहुत ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बता रहा हूँ कि मैं सुबह चिया सीड्स पीता हूँ. रात को भिगो के मैं सुबह पी लेता हूँ चिया सीड्स ओवरनाइट सोक करके तो मुझे ठीक रहता है बिकॉज इट हेल्प्स मी लॉट ऑफ थिंग्स. तो ऐसी और कोई चीज जो लोग कर रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है. ठीक है तो एक बहुत कॉमनली चीज है बिकॉज जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है चैट जीपीटी भी बहुत बताता है और हमारा इंस्टाग्राम भी बहुत कुछ बताता है तो मैं बहुत कॉमनली आज के लिए देख रही हूँ कि लोग सुबह उठ के जीरा अजवाइन का भी पानी पी रहे हैं फिर हल्दी शॉट भी ले रहे हैं फिर चिया सीड्स भी ले रहे हैं फिर और सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं सो इतनी सारी चीजें मतलब हर चीज का ना शॉर्ट्स जितने भी अवेलेबल है सिनेमन भी ले रहे हैं जितना मार्केट में सब बता रहे हैं वो सब कुछ एक साथ ले रहे हैं. आई थिंक ये हेल्दी है इंडिविजुअली चीजें हेल्दी है पर आपकी बॉडी के लिए क्या जरूरत है उसे पहले समझिए एंड सारी चीजें एक साथ नहीं करनी चाहिए. आपका मतलब लोग लिवर डिटॉक्स भी कर रहे हैं सब कुछ जो मार्केट में अवेलेबल है दे आर ट्राइंग आई डोंट से दे आर रॉन्ग दे आर प्रॉबली स्ट्रगलिंग विद देयर इश्यूज एंड दे जस्ट लुकिंग फॉर सम सोल्यूशंस बट इतनी सारी चीजें जब हम एक साथ ले लेते हैं सब कुछ ही कर लेते हैं एक साथ तो वो आपकी बॉडी के सपोर्ट में वर्क नहीं करता है अगेंस्ट में वर्क करता है. ओके दैट इज द माइंड. थोड़ा बीच बस्टिंग काम करते हैं बिकॉज क्विकली लोग रील्स देखते हैं तो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं. तो लेट्स गो वन थिंग एट अ टाइम. सुबह सुबह ओवरनाइट सोक किया हुआ मेथी इज गुड फॉर योर हेल्थ. Yes. ओके एंड व्हाट डज इट हेल्प फॉर. Methi will help for your digestion as well, for your hair as well. For matlab couple of things है seeds. Methi seeds water is good. It even helps with your blood sugar regulation. Okay, great. And overnight soaked this chia seeds. चिया सीड्स इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ फाइबर बट कई बार लोगों को उसका प्रोपोर्शन अगर नहीं लेते हैं तो इट कैन फील यू ब्लोटेड एज वेल बट चिया सीड्स इन ऑल इज गुड लाइक यू कैन एड इट इन योर स्मूदीज वंस अ डे 1 स्पून ऑफ चिया सीड्स इज फाइन बट कई बार लोगों का अगर गट सेंसिटिव है तो उनको प्रॉब्लम ब्लोटिंग की हो जाती है. ओके कुछ सेलिब्रिटीज का वीडियो वायरल हुआ है जहां पे वो ये आपने बताया जीरा पानी एंड ऑल दैट. सही कॉम्बिनेशन क्या है और किनको लेना चाहिए हु शुड कंज्यूम इट. So usually what I take and follow is like jeera, ajwain and sauf. I take this. This helps you basically अगर bloating है आपको या आपने कुछ heavy खा लिया and you're feeling a little uncomfortable, so I take it at that time. So like after a meal, 15-20 minutes, 30 minutes बाद जब ऐसा आपको लगता है you take that. That's completely fine. Even in the morning, empty stomach भी जब आप लेते हो तो आपके gut के लिए बहुत अच्छा. It soothes your gut. It helps you with relieving the bloating and everything in the morning.
So two Okay. ways you can take it, either early in the morning like empty stomach और आफ्टर योर मील्स इफ यू फील। मेरे बहुत इंस्टेंस है। जनरली क्या होता था ना पहले कि हमें थोड़ा सा भी ब्लोटेड फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, खाने के बाद फुल हो रहा है, तो वी यूज टू पॉप जो बहुत कॉमनली लोग कहते हैं कि पैंडी ले लेंगे, ओसिड ले लेंगे, एनीथिंग, कोई मेडिकेशन हम ले लेते हैं, बहुत आराम से ले लेते हैं ये चीजें। बट आई थिंक समटाइम्स दीज वाटर ऑल्सो, इफ इट्स नॉट समथिंग वेरी सीरियस, मतलब बहुत ज्यादा ही आपको अगर अनकंफर्टेबल हो रहा है तो नहीं है आपको, बट एक नो डेली लाइफ में जो कभी कभी अगर लग रहा है आपको, एंड इफ यू टेक दैट इट विल हेल्प यू रिलैक्स। ओके। रात को सोते वक्त हल्दी पी के सोना। रात को हल्दी पी के सोना इज, आई रियली डोंट फॉलो दैट। आई डोंट, डज इट लाइक आई हेल्प? विल नॉट। इट सी अगेन यही है, ये सारी ना इंडिविजुअल होती है, आपकी क्या कंडीशन है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, दैट इज। तो वही मैं कह रही थी कि इट्स नॉट अ फिक्स फॉर ऑल, सबके लिए ओके। सही नहीं है और सबके लिए गलत नहीं है। ओके। व्हाट इज द वर्स्ट एडवाइस व्हिच पीपल गेट इन टर्म्स ऑफ देयर वेट लॉस? इज ईटिंग लेस, कैलोरी डेफिसिट, ईटिंग लेस। ओके। सो खाली कैलोरी डेफिसिट नहीं करना चाहिए, मतलब कैलोरी डेफिसिट ऑफ कोर्स जब वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए, बट दैट डजंट मीन, लोग सोचते हैं कैलोरी डेफिसिट है तो हम कम खा लेते हैं, कम खाना खाने से हमारी कैलोरीज कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, आपको न्यूट्रिशन को बैलेंस करना पड़ता है। सो कई बार लोग पीनट्स अच्छे हैं तो बोल भर के पीनट्स खा लेंगे, बट पीनट्स इज सो हाई इन कैलोरीज, ऑफ कोर्स इट्स गुड, प्रोटीन रिच है, बट कैलोरीज भी तो कितनी ज्यादा है। तो वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि लोग सोचते हैं कैलोरी कम खाना है मतलब खाने को कम कर दो, खाने को कम नहीं करना होता है। यू चूज फूड विच आर लाइक डेंस इन क्वांटिटी बट लो इन कैलोरीज। करेक्ट। सो हियर दिस फॉलो अप क्वेश्चन, लाइक आपने बताया वैसे कि ओवरनाइट ये पीनट्स भिगो के खा रहे सुबह, सो दे मेंशन 15-20 पीसेस एवरी डे ओवरनाइट सोक करके दे ईटिंग इट। पीनट्स के, पीनट, या पीनट्स। so a handful is fine, or small handful peanuts is fine, but not more than that अगर आप weight loss करना चाहते हैं। They've also mentioned they're having dry fruits in the morning. This all is in ड्राई फ्रूट्स, sequence. सॉरी, Overnight soaked. They overnight soak soaked in the, dry fruits. Overnight dry, nuts are good. You should take it in the morning. It helps you, helps your body stream down in the morning. Like, and mind you, this is all somebody is asking in terms of the weight loss journey. see again, उसको आप पूरे दिन में कैसे बैलेंस करते हो? So, अगर आप थोड़े से नट्स खा रहे हो इन थ्रू द डे दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह सोक्ड खा लिए, दोपहर को, शाम को, जनरली ऑफिस में है या आप घर में है तो आपने और नट्स ले लिए, बिकॉज नट्स हैं, दे आर ऑल्सो हाई इन कैलोरीज एज वेल। सो लिमिटेड में खा रहे हो तो आप कंप्लीटली फाइन है। What are the fruits somebody who's pre-diabetic should avoid? प्री डायबिटिक फ्रूट्स, कौन से fruits avoid करने हैं? banana, it's very high in sugar, and I think fruits are also fine till a level कि आप, so it's rather than कौन सा फ्रूट खाते हैं। मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी कि लोग कहते हैं फ्रूट बहुत हेल्दी है, ठीक है, तो लोग फ्रूट डाइट भी कर लेते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, एक खाना नहीं खाएंगे, आज लंच में हम सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, या डिनर विल बी लाइट, आई हैव ओनली फ्रूट्स। सो इट्स नॉट मोर अबाउट व्हाट फ्रूट यू आर ईटिंग, बट इट्स मोर अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट। I see my dad as well doing that, so it's no, I see it very commonly कि फ्रूट खा लूंगा मेरा पेट भर जाएगा एंड आई बी फाइन। बट अगर आपको डायबिटीज है या अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, एक फ्रूट से ज्यादा आपको नहीं खाना चाहिए, Okay. बिकॉज फ्रूट में Irrespective. बिकॉज फ्रूट में नेचुरल फ्रुक्टोज होता है, तो फ्रुक्टोज है तो जाएगा बॉडी में, आपका ग्लूकोज स्पाइक करेगा ही करेगा। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर हैविंग जूसेस, सो फ्रूट्स की Correct. बात होगी तो मैं जूसेस मेंशन करना चाहूंगी कि आप समझिए कि आपकी बॉडी में अगर आपने एक ग्लास जूस डाला है तो एक ग्लास, अगर मैं आपको एक ऑरेंज खाने के लिए बोलूंगी तो आप एक ऑरेंज खा लोगे, मैक्सिमम दो ऑरेंज खा लोगे अगर आपको बहुत पसंद है। बट अगर आप एक ग्लास जूस पी रहे हो ऑरेंज का, विच इज 5 to 6 ऑरेंजेस एट वन टाइम, एंड वो भी उसमें से फाइबर निकाल के आप सिर्फ उसका शुगर पी रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर बॉडी। आपकी शुगर हाई होगी, आपका इंसुलिन हाई होगा, वापस वही लूप सारा शुरू हो जाएगा कि बॉडी फिर फैट स्टोरेज मोड में जाएगी। आपका ग्लूकोज हाई है तो ऑफकोर्स आपका डायबिटीज की तरफ आपका जो HbA1c लेवल है, ग्लूकोज लेवल है बॉडी में, वो भी स्पाइक होना शुरू हो जाएगा। Why does this acid reflux keep happening? Is it late eating or oily food eating? बोथ। Okay. So
What is the अगर आप best way? बहुत लेट Because नाइट भी खा रहे हो बॉडी को उसे सो जनरली होता है कि अगर हम लेट नाइट खा रहे होते हैं तो खा के आप लेट जाते हो आप या तो कुछ देख लोगे या आप सो जाओगे इन बोथ द केस योर बॉडी इज नॉट मूविंग एंड द फूड इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट प्रॉपरली क्योंकि आपने लेट नाइट खाया बॉडी का सिस्टम बॉडी का एक क्लॉक होता है तो hmm वो जब आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो फूड विल स्टार्ट कमिंग अप जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है आपको कि खाना मुंह में आ रहा है जिसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं एंड सेम इफ इट इज ऑयली अगेन इट इज नॉट बैलेंस्ड आप क्योंकि कुछ भी हम खा रहे हैं ना उसको बैलेंस करने के लिए हमें फाइबर चाहिए तो फाइबर बेसिकली हमारे जो गट में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो उनका फूड होता है जब वो फूड खाते हैं तो वो थ्राइव करते हैं बट अगर वो लो है आपका गुड गट बैक्टीरिया को फूड नहीं मिल रहा है और आपके जो बैड बैक्टीरियाज है वो ज्यादा थ्राइव कर रहे हैं उनका क्योंकि जितना आप ऑयली खा रहे हो प्रोसेस्ड खा रहे हो तो वो बेसिकली आपके बैड बैक्टीरियाज को स्ट्रॉन्गर बनाता है तो देन आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है एंड दैट इज व्हाई वी सी ऑल दीज प्रॉब्लम okay. Uh, what is the best time to eat fruits? Can we have fruits along with the meal? You can have like a lot of people have these yogurt bowls in the morning, but एकदम empty stomach morning में नहीं खाना चाहिए because again fruit है glucose spike, insulin spike in the morning. But if you take something prior to that, जैसे yogurt bowls I think are the best things. You take a bowl of yogurt which gives you protein. You can add your fruits to it. देन इट हेल्प्स तो प्रोटीन और फाइबर बेसिकली शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने में हेल्प करता है इवन द हेल्दी फैट इसलिए नट्स हम मॉर्निंग में खाते हैं वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में तो एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होती है सो विद अ मील इज अ गुड चॉइस या तो फिर अगर आपका गट सेंसिटिव है आप किसी जैसे आप टाइम बेस्ड ईटिंग मेथड नहीं कर रहे हो तो 2 मील्स के जो बीच में टाइम होता है फॉर अ लाइटर गट यू कैन हैव इट एट दैट पॉइंट इन टाइम Okay. So, Coach Deepika, मान लीजिए if you are training me and if you're advising me as a student that if I'm supposed to be doing the right approach, what should be my ideal day start to end? अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ 6 बजे रात को 11 बजे सो रहा हूँ मेरा लाइफ साइकिल क्या होना चाहिए या प्रोबेबली मेरा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? सो अगेन you're from your sleeping time you said 10 11. 11 सो आप 11 से आप अपना अगर 11 आप लेट सो रहे हैं आपका 9 o'clock आप उठ रहे हो डिड यू से 9 आई एम सो No, no, सॉरी I think it's 7 in the morning. 7 सी तो पहले तो स्लीप आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है ठीक है बिकॉज आपको कम से कम 8 आवर्स की स्लीप मिलनी चाहिए तो आप जब आप 7 o'clock उठ रहे हो देन ऑफ कोर्स हाइड्रेट योरसेल्फ सबसे पहले द फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज हाइड्रेट योरसेल्फ then you start off taking your meal so again जो आपका meal था last meal वहां से let's count 14 hours you start having your meal should be a protein rich meal so first meal sets the tone of your day complete day तो आपका जो पहला फूड है जो आपका प्रोटीन रिच होना चाहिए ठीक है सेकेंड आप एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स का गैप करो आपको अगर चाय पीनी है ब्रेकफास्ट के साथ अपनी चाय ले लो नॉट ऑन एम्प्टी स्टमक देन आफ्टर ब्रेकफास्ट 4 आवर्स एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स के बाद आपका लंच होना चाहिए लंच के 4 to 5 आवर्स अगेन लेटर आपका डिनर होना चाहिए लंच इन योर डिनर शुड बी मोर ऑफ प्रोटीन मोर ऑफ फाइबर हेल्दी फैट आप इंक्लूड कर सकते हो एंड कार्ब्स इन अ स्मॉलर पोर्शन जो अभी हम राइस इतना खाते हैं या 2 या 3 रोटी खाते हैं और सब्जी दाल थोड़ी थोड़ी खाते हैं उसको बैलेंस करना स्टार्ट कर दो यू शुड अगर हम इन अ डायग्राम इफ वी एक्सप्लेन योर हाफ प्लेट शुड बी ऑफ फाइबर your 1/4 plate sorry 3/4 plate should be protein and 1/4 should be your carbs that's how your plate should be there बट Okay. अभी हमारा ये ऑपोजिट होता है ओके सो सुबह उठ के मुझे कुछ करना है या लाइक से इफ आई एम इन अ रश या मैं सुबह वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ तो मैं सुबह उठ के स्ट्रेट अवे रेडी होके आई कैन हैव माय कॉफी और मे बी आई कैन हैव माय बनाना बिकॉज आई नीड समथिंग ऑन द प्री वर्कआउट और क्या करना चाहिए व्हाट इज द आइडियल अप्रोच? तो आइडियल अप्रोच अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो तो देन गो फॉर अ लाइक अ प्री वर्कआउट which could be apple and peanuts something which is not something that irritates your gut in the morning actually like coffee immediately utte empty stomach I don't recommend coffee and tea but something that helps you something which is high in protein so thoda carb bhi hai morning mein toast and peanut le lo aap apples le lo anything that helps you to bring more energy because agar aap mein subah subah energy nahi hai aur aap jaake gym mein workout kar rahe ho तो it will not help you it will again imbalance your hormone so pre workout especially for women I do recommend take some nuts maybe which helps you give energy Okay, great. I think one myth we should like to break for which is not good for your gut as well as for your weight loss. जो आपके एक्सपीरियंस से लोगों के पास आपने सुना होगा कि
ये कर रहा हूं मैं, वो कर रहा हूं मैं, but it is not helping. So what is that one thing they should stop immediately? Something that you should stop immediately, like I said, fruit and timing. Quantity of your fruit and timing of your fruit. Okay, fine. A lot And of times we've been told कि fruit हमें empty stomach लेना चाहिए, तो people morning में सबसे पहले fruit खाते हैं. So that is हाँ, something for both. So for your weight loss as well and for your gut as well. okay. And I think worst advice on again gut and weight loss. Sorry, which advice? Worst advice. Worst advice for your gut and weight loss: eat less. Don't eat less. Okay. Hmm. Is ghee good for weight loss? Yes, ghee is good because it's a great source of healthy fat. But in limit Okay. again. घी मतलब फिर कटोरी भर के घी नहीं खाना है, but it's a good source of healthy fat बिकॉज and it आजकल बहुत helps you. रील्स चल रही है घी खा के वजन कम करो. घी खाओ, वही मैं कह रही हूँ, घी खाओ बट एक लिमिट में खाओ. घी इज अ एक्सीलेंट सोर्स. आपके नट्स है वो भी आर गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट. अवाकाडो है, तो घी है, सो दीज आर रियली गुड. ओके. One more thing that I missed on, start including probiotics in your diet when you asked for one habit as well. So करेक्ट. probiotics है वो कुछ ना कुछ फॉर्म में हमारे फूड में होना चाहिए. ओके. Okay, I think looks good because there are a lot of other questions which I think are on repeat. Can see almost 15 20 questions which are on repeat. What is your lifestyle? What is your daily routine? आपका क्या है routine? So मेरा डेली रूटीन ये है: आई वेक अप इन द मॉर्निंग, some water, my kids go to school. Post that, I just get into, I just catch up with my work and everything. And then around 10ish or 11ish, I take my breakfast. I try, even I'm trying to have more of protein. Sometimes it happens, sometimes it doesn't. Let's be very honest. Because when we live in families, सबको अलग अलग खाना होता है and it's not, practical. But I keep trying my best to make as much as protein rich that I can. Then I'm back to my work because I, work from home. I've been working from home. Then my lunch and dinners at home. My kids come back, so it's completely on that. My lunch and my dinner again. My lunch, because I eat late breakfast. Then my lunch is also around 3ish, so that I can make that 4 to 5 hours of gap. In the evening, honestly, because मेरा movement एकदम कम हो गया था last couple of times से, तो I now started going to the gym so that my body can have that movement. And dinner, and then I sleep. But sometimes I sleep on time, which is 12ish for me, and sometimes it's late because I'm dealing with my work globally, so कभी कभी late हो जाता है. But yeah, I try to at least sleep 6 to 7 hours. Great. Some quick questions for you. Music या meditation? Sorry, music. Music या meditation? What works for you? What comes What is your easily? preference? Music? For me, I'm saying for some quick me, questions for you. music. Yeah. What is your preference? Music या meditation? I said music. Okay, great. No, because I think we were not able to hear you. And you like fast food? I'm a big time foodie. Okay. So pizza या pasta? Both, but I like to make them at home because बाहर जो हम खाते हैं उसमें veggies गायब होती है. But if you see my pizza or my pasta, it's loaded with veggies, and that's how I love it. Your one go-to protein every single day. आपका daily consumption. Dals, lentils, Okay. Uh, paneer and या tofu? paneer, and paneer. Paneer. I eat tofu, but paneer is like my go-to. And what your favorite fruit? My favorite fruit, mango actually, not apple. Sorry, mango. But then does it help in your weight loss? In smaller portions, usually if my clients are listening, they'll say no, she doesn't allow during the weight loss. But in a small portion, it's fine. Okay, great. If you were to restart your journey again in terms of as a coach, as a weight loss, into your training, everything, if you turn 20 again, what would you do? If I go 20 again, I would restart it again. I would learn newer things, and I wish I could have made these changes that I'm making in my 30s. I could have done this in my 20s. My life, my body would have been different. I know for sure. तो आप अपने आप को अगर आप 20 साल के हैं तो आप क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस देंगे? 20 साल की जब मैं होंगी तो मैं अपने आप को यही एडवाइस दूंगी कि प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दो पहले. आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो ये
मान लीजिए ये खाने पीने के बाद छोड़ देते हैं, आप माइंडसेट के Hmm. बारे में क्या सलाह देंगे एज ए कोच? Mindset के बारे में, if I'm in 20 and I want to start this, of course it makes a lot of difference. Let me tell you honestly, this has changed my life in ways I can't even understand sometimes कि क्यों हो गया, because मेरा complete, because when I started doing this, my mindset actually started changing. As a business, if I tell you, or as a coach, I'm telling you, dealing with people, you know, the motivation I have, because once your health is proper, आपका mindset automatically different हो जाता है, change हो जाता है. I'm always, looking forward to what next. How I'm helping people, that helps me grow myself, like in my confidence. There was a time, Darshanji, I was not even comfortable taking a photograph of mine. Like even in group photos, I wouldn't take. But this is a big change for me. How I have grown and how I have learned in this. So of course, everything, like I used to be very negative. Let's start. I don't feel that now. So my mental clarity, everything focus has been changed post this. And it Okay. gives me real pleasure, when those small messages pop up, when they say thank you, Deepika, you helped us, it's changed. I'm feeling so better. I feel as if it's my own journey. और आपका आखिरी सवाल, लाइक वी वुड लाइक टू आस्क यू दिस लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लेट यू गो। आपका सपना क्या है? व्हाट इज योर ड्रीम नाउ? My dream now is to help as many as people I can, not only with their health, but with their freedom of life, freedom of time. That's the goal right now that I'm working with. First is to help people, improve their health, because, like I said, I didn't say that earlier, but I discussed it with you that today most of the people, like India has become the capital of diabetes and even fatty liver. So we need to help this, change this with people. It's like a what do I say? It's like a I'm so sorry. It's like more like मेथड है कि आप इससे कर सकते हो, आप रिवर्स कर सकते हो इन सारी चीजों को, बट वी आर नॉट डूइंग इट. एंड आई वांट टू हेल्प एज मेनी पीपल एज आई कैन, बिकॉज इन यंगर जनरेशन व्हेन वी आर सीइंग दिस कि डायबिटीज हो रही है, फैटी लिवर हो रहा है, तो आई जस्ट वांट टू हेल्प दीज आर लाइक किड्स इन फ्रंट ऑफ मी समटाइम्स आई फील, एंड व्हेन दे कम एंड अप्रोच मी, I just want to help as many people as I can. Also, a lot of time people are, struggling in their jobs and everything. So maybe as no coaches, when we have grown, we have seen life can be different with the struggle, without the struggle of the corporates. I want to help them even to get their financial freedom as well. So that's the goal ग्रेट। that I'm working with right now. वन नॉन नेगोशिएबल हैबिट आपकी जो आप रोज करते हैं, वन वन गुड हेल्दी हैबिट एवरी डे वी शुड डू। One good healthy habit is tracking my protein. कि मैंने दिन में कितना प्रोटीन खाया है. I do take care of that. If I एंड miss it on my earlier meal, then later I would take care of it. and one habit which you would recommend to all youth of India, non-negotiable. Non-negotiable, I'll say two things. Start eating a balanced meal and please sleep. Okay, great. Any last message to the youth? Sorry, last message. Any last message to the youth? I think a lot of time people have already started working in their younger age, but they understand more, but start working on it. Sometimes we are just scrolling and we are thinking कि हम ये करेंगे, so stop procrastinating and let's start take action. If people want to contact you, how they can contact you? They can reach out to me on my Instagram. My handle is Gadglow Secrets. My WhatsApp number is also available there, so you can contact me by my WhatsApp or by Instagram. Great. I think Deepika, we had a wonderful session. So thank you so much. I think a lot of questions we've answered. I think it's almost like 30 to 40 questions we had asked, and we had a great time. A lot of valuable inputs. I think we should do in your paid programs you shared here. So we are so thankful to you. Thank you so much. Thank you so much. It was lovely coming onto the live. I helped, like I'm sure that it can help a lot of people and we could reach more and more people through this. So yeah, I had a wonderful time with you and absolutely like so many questions and I could even give so much of insight. So it's a great session. Thank you.